डाइपोल मोमेंट, देखिए सिंपल सी भाषा में डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पोल्स होते हैं, which has two poles, one is positive and one is negative. That is what you commonly call as dipole. Clear? Am I clear to everyone? Now see, we all know just now we have seen HCl. अभी हमने देखा HCl भी देखा और HH भी देखा, और इन दोनों में हमने कॉमन चीज क्या देखी? कॉमन चीज क्या देखी? We have seen that here no poles are there. Why? Because these are the two similar atoms. But here they develop two poles. One gets slightly positive charge and another gets slightly negative charge. Why? Because this shared pair of electron is more attracted towards that atom which is having more number of electrons. And that is what we have discussed about polar covalent bond and non-polar covalent bond. तो मैंने आपको बताया कि in a polar molecule one end is positive and another end is negative. क्लियर? मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देख रहे हैं? We are seeing कि दो poles develop हो रहे हैं, और obviously when there are two poles developed inside a molecule, we call that molecule has developed an electric dipole. But as a whole, a molecule is electrically neutral. When I am saying electrically neutral, it means what? The number of negative charges is equal to the number of the positive charges. मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का वो इक्वल है। तो मैं आपको डाइपोल समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आई हैव टू मॉलिक्यूल, वन इज ए एंड द अनदर वन इज व्हाट यू राइटली कॉल एज बी। आई हैव टू मॉलिक्यूल्स, एक का चार्ज प्लस क्यू और दूसरे का चार्ज माइनस क्यू। अब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट यू कॉमनली कॉल एज D. D is the distance between two charged particles A and B. तो डाइपोल क्या बोलता है? सुनिएगा ध्यान से। The product of magnitude, magnitude मतलब amount, the product मतलब उत्पाद, the product of magnitude किसका? नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का। The product of magnitude of the negative charge as well as the positive charge, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है that is D, that is called as dipole moment. फिर से लिख लीजिए, the product of magnitude, magnitude मतलब मात्रा, amount, the product of magnitude of negative और positive charge, और negative और positive charge मैंने कैसे लिया? Q. Is this clear? And the distance between them, that is D. Clear? Right? Between the center of the positive as well as the negative charges, that is called as dipole moment. Dipole moment is usually referred as mu, and mu is equal to product of magnitude charges का क्या है? Q ले लिया मैंने, और उनके बीच का distance that is D. So mu is equal to Q into D, the product of magnitude of the charges and the distance between them. This is commonly called as what? This is commonly called as dipole moment. What it is called as? Is this clear? ये चीज सबको याद रखनी है। इसकी यूनिट है dBi. Is this clear? The unit of dipole is dBi, and 1 dBi is equal to, इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो 1 into 10 minus 18 ESU, 1 minus 18 ESU centimeter. This you people must remember. Is this clear? That is what you call as dBi. You must remember this. और SI units में तो इसकी वैल्यूज अलग हैं। Clear? You must remember. अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, that is, अब आपको जो बताने की कोशिश about the dipole moment and molecular structure. देखिए सबसे पहले we will check it out in diatomic molecules. देखिए dipole moment is a vector quantity, and what is vector quantity? Which has both magnitude as well as direction. ठीक है? Is this clear? तो हम diatomic molecules में कैसे represent करेंगे dipole moment? ये देखिए, it is represented like this. One represents the magnitude and another represents the direction. या ये बोल लीजिए कि टेल
आप देखिए हेड जो है वो शो करेगा नेगेटिव, बहुत ध्यान से समझिएगा, हेड जो है वो शो करेगा नेगेटिव एंड टेल विल शो द पॉजिटिव साइड ऑफ अ डाइपोल। तो हेड विल शो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड एंड टेल विल शो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि वी आर स्टडीइंग अबाउट द polar diatomic molecule. So polar diatomic molecule has only one polar bond. How much it has? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर बॉन्ड। जैसे मेरे को HCl का बनाना है, तो HCl का कहाँ आएगा बोलो? Cl नेगेटिव है तो हेड की तरफ, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो टेल की तरफ। क्लियर? और इसका डाइपोल मोमेंट याद रखना है कितना हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। और ये डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है याद रखेंगे, HCl का डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 1.07 डी बाय, इट इज 1.07 डी बाय। क्लियर? एक चीज यहाँ पे और याद रखेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉन्डेड एटम्स, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव difference between the bonded atoms, greater will be its dipole moment. तो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा, अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताया मैंने, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसका डाइपोल मोमेंट 1.78 डिवाई, देन HCl, इसका डाइपोल मोमेंट अगर आप देखेंगे 1.07 डिवाई है जी। देन HBr इसका डाइपोल मोमेंट अगर आप देखेंगे 0.79 डिवाई, एंड देन आफ्टर वी हैव HI दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका डाइपोल मोमेंट होगा 0.38 डिवाई। Am I clear to everyone? Right? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा। अब ये तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, इसमें बताया मैंने, यस दिस यू हैव सीन इन पॉलीएटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बताया मैंने। डायटॉमिक मतलब वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन। नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन पोलर बॉन्ड, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है इट ऑलवेज इक्वल टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनना, इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल देयर आर मोर देन वन, बहुत सारे डाइपोल हो सकते हैं उसके, तो उसका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल से समझाता हूं, दिमाग में इजीली घुस जाएगा। ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ, हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर का एग्जांपल। ये क्लियर हो गया सबका? शुड आई रब इट? लेट अस सी H2O. Now as you all know that H2O water is a polar covalent compound. It's a polar compound. और जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर को मैंने कैसे बनाया, HOH। Am I clear to everyone? अब इसका आप डाइपोल कैसे दोगे? ऑक्सीजन नेगेटिव है तो कैसे जाएगा, हेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड टेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, हेड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड टेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये 2 डेल्टा नेगेटिव। क्या होगा ये 2 डेल्टा नेगेटिव। तो इसमें एक चीज देखने लायक क्या है बेटा, व्हाट इज दैट हैज टू बी सीन। अगर आप देखोगे एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स हैं, एक से ज्यादा डाइपोल्स हैं, है ना, एक से ज्यादा, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसका डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे कैसे? आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसका डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे?
हाउ विल यू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट? हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे रिजल्टेंट डाइपोल। कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट डाइपोल। तो रिजल्टेंट डाइपोल इसका कितना निकलेगा वाटर का? 1.84 dpi। और ये रिजल्टेंट कैसे डाइपोल निकला? 1.84 dpi कैसे निकला? इट इज द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ टू OH बॉन्ड। एक OH बॉन्ड ये वाला और दूसरा OH बॉन्ड ये वाला। इसका जब हमने निकाला तो वो निकला रिजल्टेंट डाइपोल। और इसका म्यू कितना आया? रिजल्टेंट डाइपोल कितना आया? म्यू इज इक्वल टू 1.84 dpi। तो दिस इज द रिजल्टेंट। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का आप डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? यू एक्चुअली कैलकुलेट द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल। व्हाट यू कैलकुलेट इज resultant molecule. Is this clear? Right? And this resultant dipole moment is equal to this OH bond and this one more OH bond. एक और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। चलिए मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, अमोनिया का आप निकाल के दिखाइए NH3, उसका डाइपोल मोमेंट बना के दिखाइए।